So, a very hearty good morning to all dear students. I hope so. You all must be fit and fine at home. Children, as you can see, I'm going to start with a new chapter from geography, that is, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation, and wildlife. Children, when visiting various places, you must have seen the various kinds of soil, even the natural vegetation, the wildlife, wherever you go. And side by side, you must be wondering why such kind of variations are there. After each and every distance, you can see the grassy plains, the desert area, the rocky areas. After that, you can see the very green and lushy areas also. So these are the different, these things can be observed in different parts of the world. And according to these things, due to the various topography, you can also see the different kinds of lives which survives over there, the wildlife over there. And why such kind of differences is there? Because of the differences in the quality of the land, the soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of the technology has also created a wide variations in the quality of the lives of the people. Now, the availability of such resources is the main reason places differ from each other. Once again, I would like to say the availability of such resources, what kind of resources? That is the land, soil, water, natural vegetation, wildlife. These are the reasons why the places differ from each other. Now, today I'm going to start with a new topic in this, the subtopic, that is the land. Children, you know the land is an important natural resources, and 30% of the total area of our earth's surface, it is covered with land. Is it clear? And small, you must have seen when you have seen the world map also, from all these parts there is small percentage which are not habitable. What is you mean by habitable? Where the people don't live. Is it clear? So this uneven distribution of population which survives in different parts of the world, it is mainly why? Because of the various characteristics of these land and the climatic condition. You can see mostly in the hilly areas, on the topper ranges of the hilly areas, you find the habitation of the people, even the animals are very less, even in the desert also. When you compare it, you'll see the people, they don't like to live in such harsh climate where there is too much of cold, extreme cold, or extreme hot. So the rugged topography, that is the steep slopes of the mountains, वहाँ भी कोई रहना नहीं पसंद करेगा. लो लाइंग एरियाज जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, लाइक इन आसाम एंड ऑल. Okay, there is a water logging over there. People also, they don't want to like to habitat in that area. Even in the desert areas also, it's very hot over there. Thick forested areas also, people don't like to live over there. That is why these areas are sparsely populated area. वहाँ पे population कम पाई जाती है. Sparsely का मतलब very less, or we can also call in a single term, that is uninhabited area. So plains and river valleys, these are the main places where people find it suitable, comfortable to live over there, because they get plenty of water also, which is good for agriculture and all. Plains are there, easy for the constructions of the roadways, railways, very suitable places for the people to live over there. That is why these areas are densely populated areas of the world. आप देखोगे जहाँ भी सिविलाइजेशन हुआ, चाहे वो इंडस वैली के पास हुआ, इजिप्ट में भी देखो वैली रिवर के पास हुआ, जितने भी सिविलाइजेशन हुए वो रिवर्स के ही पास हुए. आपको आपने सिक्स्थ में भी पढ़ा होगा, जब सिविलाइजेशन पढ़ाया था, तो पीपल लव टू लिव नियर द रिवर्स एरियाज ओनली. वाई? बिकॉज दे कैन ईजली गेट द वाटर, एग्रीकल्चर वहाँ पे आराम से हो सकता था. दैट इज़ वाई आज आप देखोगे कि जितना भी रिवर एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. आप देखो गंगा रिवर, वाई यूपी इज़ डेंसली पॉपुलेटेड? बिकॉज द रिवर गंगा, the various tributaries of Gangas, Yamuna and all, they are flowing in this. That is why Bihar, UP, West Bengal, आपका ये
Himachal, this Haryana, Punjab and all, these are all densely populated areas. Okay, this is also one of the major reason why these areas are very densely populated. Now we come to the next topic in this, that is the land use. Okay, now land, you know, it is used for various purpose, like we can use land for the agriculture, for forestry, for mining, for building houses, for roads, setting up of the industries and all the various purpose which we can use these lands. So this is commonly termed as a word, a land use. Okay, now as you know, 90% of the world population, they occupies only 30% of the land area. The remaining जो 70% लैंड एरिया है वो आइदर इट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, या तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है, अनइनहेबिटेड एरिया है, और आपको मैंने वैसे बताया बिकॉज ऑफ द रगड टोपोग्राफी, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट्स एंड ऑल. नाउ common property resources, I'm going to discuss about that also. Now land can be also divided on the basis of the private land and as well as the community land. What is a private land? Private land means आपकी अपनी own land, ठीक है, जो आपके पास अपनी लैंड है, जिसके आप जो है ओनर हो, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट लैंड, या और कोई ओनर है दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट लैंड. और कम्युनिटी लैंड क्या होती है? जो एक कम्युनिटी ओन करती है. कम्युनिटी ओन क्या होती है? जो कॉमन यूज़ के लिए होती है, जैसे फॉडर के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, या मेडिसिनल हर्ब्स के लिए. इस कम्युनिटी लैंड्स को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं. ओके, नाउ we have seen that there is a vast changes of land over time. Now according to the demands of the people, is it clear? The demands of the people are growing day by day. लेकिन land क्या है? We are having land, the availability of land is only limited with us, but the demands of the people are increasing day by day. They need a क्या कहते हैं, house to live, a separate house to live, and in order to team such a vast population, we also need a land for the agriculture purpose and all. So because of the people demands, the availability, the uses of the land is growing up day by day, but the availability of the land with us is very limited. So what happened? Because of the growing demands, the people started the encroaching the common lands. अब जो common lands थी उनको उन लोग यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं? वहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ बना रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट्स एंड ऑल बन रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, एंड एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपैंड करने के लिए रूरल एरियाज़ में इवन दे आर कटिंग द फॉरेस्ट्स ऑल्सो. ओके, द फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डिस्टर्ब. नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है. लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड की यूज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लैंड की कमी होती जा रही है. लैंड स्लाइड्स आप देख रहे हो, आजकल आप देखते हो न्यूज़ में लैंड स्लाइड्स कैसे हो रही है उत्तराखंड, उत्तरांचल में, हिली एरियाज़ में. सॉइल इरोशन हो रहा है क्योंकि हम ट्रीज़ बहुत काट रहे हैं. उसके बाद डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, लैंड जो ऐसी वेस्ट पड़ी हुई हैं, डेजर्ट्स एरिया पड़े हुए हैं. दीज आर द मेजर थ्रेट्स फॉर एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ विच वी आर डूइंग दीज डेज. ओके, ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर. नाउ यू कैन सी द वेरियस यूजेस ऑफ लैंड ओवर हियर. यू कैन सी हाउ दीज लैंड्स हैव बीन. पहले देखिए ये लैंड हमारे पास कैसे थी, पूरा एरिया कैसा था, पूरा एग्रीकल्चर हो रहा था इसमें, ठीक है, सिंपल लाइफ गोइंग. इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी धीरे धीरे कैसे अब ये देखो घर बनते गए धीरे धीरे. उसके बाद अब आप यहाँ जाओ अर्बन एरियाज़ में, अब देखिए धीरे धीरे अर्बन एरियाज़ में और डेवलप हो गया ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल. नाउ यू कैन सी मोर नंबर ऑफ द मल्टी कॉम्प्लेक्स एरियाज ओवर हियर, द फ्लैट्स, बिल्डिंग्स एंड ऑल ओवर हियर. जस्ट सी द टू मच ऑफ व्हीकल्स ओवर हियर. तो लैंड्स की जो है यूज़ इस तरह से दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ड्यू टू विच इससे एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है. Now we come to the next topic, how we are going to conserve the land resources. Okay. Now, due to the growing population, there is ever growing demand of the population also, due to which क्या हो गया? इसकी वजह से destruction of the forest cover area हो गया है. forest को दिन पे दिन काटते चले जा रहे हैं, ठीक है. arable lands को भी हम यूज़ करते जा रहे हैं. इससे क्या हो गया? It has created a fear of losing the natural resources, जिसकी वजह से हम अपना नेचुरल रिसोर्सेज को दिन पे दिन जो है ख़त्म करते जा रहे हैं. और एक ही डर बैठा हुआ कि एक दिन ये नेचुरल रिसोर्स जो हमको मिला हुआ है ख़त्म ना हो जाए. इसलिए प्रेजेंट डे रेट जो डिग्रेडेशन का लैंड रिसोर्सेज का है, इसको हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू कीप अ चेक ऑन द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड. नेक्स्टली, अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated uses of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing areas are some of the common methods used to conserve the land resources. Well, देखिए
अफॉरेस्टेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अफॉरेस्टेशन? प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज. लैंड रिक्लेमेशन, लैंड को फिर से कैसे फर्टिलिटीज़ की बढ़ाई जाए, उसको कैसे रिक्लेम किया जाए. फिर उसके बाद हम जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये जो यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर चेक करना भी बहुत ज़रूरी है. कम से कम यूज़ करें, बिकॉज ड्यू टू द हैवी यूजेस ऑफ द केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, लैंड की फर्टिलिटी जो है बहुत कम होती जा रही है. नेक्स्टली ओवर ग्रेजिंग ऑल्सो. ओवर ग्रेजिंग मीन्स हम जो गाय भैंस चराने ले जाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो जो नहीं थे उन लोग खाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे क्या कहते हैं, एरिया जो है वो पूरा बैरन हो जाता है. वहाँ पे जो है ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, ग्रास ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉइल भी लूज़ हो जाती है, तो सॉइल इरोजन हो जाता है. ये कॉमन मेथड्स है लैंड को कंजर्व करने का. दीज आर द कॉमन मेथड्स इन विच वी कैन कंजर्व द लैंड. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ लैंड स्लाइड्स. नाउ लैंड स्लाइड्स जो है, व्हाट आर लैंड स्लाइड्स? लैंड स्लाइड्स क्या होती है? आज जरूर आप लोग न्यूज़ में देखना जरूर आता है कि उत्तराखंड, उत्तरांचल में वहाँ पे जाना बैन कर रखा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स विच आर टेकिंग प्लेस ओवर देयर. अभी सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आप देखो जो है, जिसकी वजह से आप देखो रास्ते रुक जाते हैं और आगे जाना बंद कर दिया जाता है. ये क्या होता है? लैंडस्लाइड्स, व्हाट आर द लैंडस्लाइड? दीज आर द सिंपली मास मूवमेंट ऑफ द रॉक. मास मूवमेंट ऑफ द रॉक आप देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय मास मूवमेंट? कि वहाँ पे क्या होता है आपका, हाँ आप देखोगे मास मूवमेंट ऑफ द रॉक, जब आप देखते हो पहाड़ों पे से पत्थर गिरते हैं, रॉक्स गिरते हैं, या मिट्टियाँ नीचे गिर जाती हैं स्लोप से, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लैंड स्लाइड्स. ओके. एंड ये स्पेशली कब होता है? या तो अर्थक्वेक आ गया, या फ्लड्स आ गए, या वोल्केनोज इरप्ट हुए, इससे भी होता है. या कंटिन्यूसली देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड, व्हाट इज प्रोलॉन्ग? कंटिन्यूस स्पेल ऑफ रेनफॉल. दिस कैन ऑल्सो कॉज अ हैवी लैंड स्लाइड्स, एंड ड्यू टू विच दे कैन ब्लॉक द रिवर्स ऑल्सो फॉर क्वाइट सम टाइम. अब ये सब पत्थर आके कहाँ गिरेंगे? आपके इस पे क्या कहते हैं, रिवर्स पे गिर सकते हैं, जो स्ट्रीम्स आते हैं उस पर गिर सकते हैं, जिससे कि रिवर ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं. सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द रिवर ब्लॉक्स इट कैन कॉज अ हैवॉक टू द सेटलमेंट्स. जो नीचे डाउन स्ट्रीम्स में लोग रहते हैं, वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ बर्स्ट हो सकता है. जो आपने याद करो व्हाट हैपेंड इन केदारनाथ, सेम थिंग हैपेंड ना. ठीक है. सो इन द हिली terrain landslides, they have been a major and widely spread natural disaster, जो कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी जो है इफ़ेक्ट करता है. एंड इट इज़ अ problem which is of a major concern, in which we have to think over it. Now there are various techniques which we can use for the land conservation, like hazard. There are various techniques. Due to the advancement in the techniques, it has empowered the people to understand what are the factors which cause the landslides and how we are supposed to manage them. Some broad mitigation techniques which people have used are: first is the hazard mapping. ठीक है. In this we locate areas which are the areas prone to the landslides. इसलिए ऐसे एरियाज में बिल्डिंग सेटलमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए. सेकेंडली, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. अभी भी आप जब जाओगे इधर देखोगे, व्हेन यू गो टू द हिली एरियाज, वहाँ पे वॉल्स बना दी गई हैं. ठीक है. जो कि लैंड को स्लिप करने से बचाता है. व्हेन यू विजिट टू हिमाचल एंड ऑल, अब आप देखिएगा वहाँ पे कॉन्क्रीट वॉल्स बनाई गई हैं, जहाँ पे लैंड स्लाइड्स की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, एंड जहाँ सेटलमेंट एरिया है, जिससे कि लैंड स्लाइड से पॉपुलेशन पे या एरियाज पे इफेक्ट ना पड़े. इन साइड बाय साइड वी शुड इंक्रीज द वेजिटेशन एरियाज ऑल्सो. ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे पेड़ उगाएं, जिससे कि लैंडस्लाइड्स नहीं हो पाएँ. नेक्स्ट लास्ट, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल. सरफेस ड्रेनेज के सरफेस पे जो पानी बहता है उसको कंट्रोल करना चाहिए ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लैंडस्लाइड्स अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज. इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दिस वॉट एवर आई टॉट टिल हियर, दिस वॉज अबाउट द लैंड, व्हाट इज लैंड, various types of land, how the lands can be conserved, and what are the various kinds of the land degradation these days. Now I come to the next topic, that is the soil. Soil क्या होती है? You can see a beautiful picture over here of a soil profile. ठीक है. Now first of all I would like to tell you what is the soil. The thin, you have seen on the earth's surface, you see a thin layer of grainy substance. The grainy substance which cover the surface of the earth, that is called as a soil, and it is closely linked to the land also.
इज इट क्लियर? लैंड, अब जहाँ की भी लैंडफॉर्म होएगी वही आपको उसकी लैंडफॉर्म, उसकी टाइप ऑफ सॉइल बताता है. सो सॉइल जो है लूज पार्टिकल्स जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है, दैट इज अ सॉइल एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स विच आर फाउंड ऑन द अर्थ. इज इट क्लियर? एंड ये ऐसे कैसे होता है? इट हैपन्स ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. ठीक है, जब रॉक्स टूटते हैं तब ये बनता है. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक अ सॉइल फर्टाइल. ठीक है, अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग मीन्स द ब्रेकिंग अप एंड द डीके ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स बाय अब ये वेदरिंग टेम्परेचर चेंज से हो सकती है, फ्रॉस्ट से हो सकती है, प्लांट से हो सकती है, एनिमल से हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी वेदरिंग होती है. ठीक है, जहाँ पे रॉक्स विदर होते हैं. अब आप देखोगे सॉइल स्ट्रक्चर में, आप देखोगे सबसे ऊपर वाला टॉप सॉइल है. ओके, दिस वन इज द आंसर, द अपर वन इज द टॉप सॉइल. दिस इज द टॉप सॉइल विद द ह्यूमस एंड द वेजिटेशन ओवर हियर. ये ऊपर वाला जो दिखाई देता है हम लोग को, ये टॉप सॉइल होती है. उसके बाद आती है सब सॉइल. सब सॉइल में देयर इज अ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. आफ्टर दैट कम्स द वेदर्ड रॉक. वेदर्ड रॉक के बाद आपको मटेरियल पेरेंट रॉक, जो टूटे पेरेंट रॉक होता है जिसके ऊपर ये सॉइल बनती है, ये पेरेंट रॉक होता है. इसी के ऊपर ये वेदर्ड रॉक टूटे आते हैं, उसी के ऊपर हमारे पास सब सॉइल, उसके ऊपर हमारे पास टॉप सॉइल बनती है. ओके, so these are the various layers of the soil and you should know it takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil. Okay, 100 years लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए. Now what are the various factors of soil formation? Let us see over here. Now soil किस किस चीज़ों से बनती है? Due to the effect of the climate, time, after that parent rock, relief features, flora and fauna and microorganism. These are the various factors. Children, I would like you to make this diagram. First of all, the soil profile. All of you are requested to make this diagram in your notebook. And secondly, you are also supposed to make these factors of soil formation also. Okay, you can see the various factors which make the soil over here. Now, first of all, I am going to describe about the parent rock. पेरेंट रॉक क्या होता है मैंने अभी आपको इस फिगर में बताया. दिस इज द पेरेंट रॉक. मटेरियल पेरेंट रॉक इज ओवर हियर. लेट मी शो यू. यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक जिसके ऊपर ये रॉक्स फॉर्म होती है. ये पेरेंट रॉक जो होता है ये आपको डिटरमाइन करता है उस एरिया के सॉइल के कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट्स एंड परमेबिलिटी. परमेबिलिटी मीन्स कितना ये पानी अपने अंदर से जो है पास कर सकता है, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी. ओके, ये पेरेंट रॉक होता है. उसके बाद आता है आपका, विल मूव द फर्दर, देन कम्स आपका पेरेंट रॉक के बाद रिलीफ फीचर्स. विल टेक ओवर हियर नाउ. रिलीफ फीचर्स में क्या आता है आपका? रिलीफ फीचर्स क्या होता है आपका? ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट अबव द सी लेवल, कितनी हाइट पे आपका वो एरिया. स्लोप. उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कितनी एक्यूमुलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलीफ फीचर्स. उसके बाद आता है आपका फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये भी फ्लोरा फौना मीन्स वहाँ पे जो आपके वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स, जो किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और किस प्रकार के माइक्रो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में. ये भी आपका ह्यूमस फॉर्मेशन जो है आपकी बताता है कि ये सॉइल कैसी है, इसमें ह्यूमस कितना है. ठीक है, फर्टिलिटी इसी पर डिपेंड करती है. आफ्टर दैट कम्स द क्लाइमेट. क्लाइमेट में आपका आता है बेटा टेम्परेचर आ गया, रेनफॉल आ गया. आज अगर देखो टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम है तो भी वही दैट सॉइल वोंट बी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स एंड ऑल. रेनफॉल विल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द ह्यूमस ऑफ द रॉक ओवर दैट. आफ्टर दैट कम्स द टाइम. टाइम मीन्स इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, कि ये सॉइल जो है यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है. ठीक है, ये भी उससे वेरिएट करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ दैट रीजन. नाउ सॉइल, अब व्हाट आर द वेरियस रीजन, चलो देखते हैं. नाउ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन आप जानते क्या होता है? जब आपकी सॉइल वहाँ से इरोड हो जाती है ड्यू टू द रेनफॉल, ड्यू टू द विंड एंड ऑल. एंड डिप्लीशन, उसका कम होना. दीज आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल रिसोर्स दीज डेज. वंस अगेन, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, ये दो मेजर थ्रेट्स हैं हमारे सॉइल के लिए समय. नाउ अब इसके लिए जो है कौन है ज़्यादातर इसका जिम्मेदार कौन है? बोथ ह्यूमन्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर ऑल्सो. we are also responsible for the degradation of the soil these days and the natural factors. As I told you, degradation क्यों हो रहा है? Because of the
क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑल, जो, और उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि आजकल आपको देख रहे हो, ड्यू टू द फ्लड, नेचुरल कैलामिटीज़ एंड ऑल, जो भी होता है, ये इससे सॉइल की डिग्रेडेशन हो रही है। फैक्टर्स जो सॉइल डिग्रेडेशन का रहा है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, ये सब इसका रीज़न है। उसके बाद हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व द सॉइल। नंबर 1 इज़ मल्चिंग। नाउ जो bare ग्राउंड होता है बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक स्ट्रॉ जानते हो क्या होता है, आप क्या होता है? मल्चिंग जो है ये एक तरीका होता है सॉइल को कंजर्व करने का, जिसमें कि जहाँ पे खाली जो ज़मीन होती है प्लांट्स के बीच में, उसको जो है क्या कर देते हैं, दो प्लांट्स के बीच में जो खाली एरिया होता है, उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपका जो है स्ट्रॉ जानते हो, जब हम ये हस्क वस्क होता है, जब हम जो गेहूँ काटते हैं या कोई भी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसमें जो बचा हुआ जो चीज़ बनता है, उससे उसको जो है स्ट्रॉ को लगा के सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए हम उसके लिए लगा देते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टोर बैरियर्स, जिसमें हम स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स इसको यूज़ करते हैं बैरियर्स बनाने के लिए कॉन्टर्स के रूप में, एंड साथ ही साथ ट्रेंचेस भी बना देते हैं इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर ओवर देयर। आई कैन शो यू ओवर हियर, ये देखिए यहाँ पे कॉन्टोर बैरियर्स। ओके, ये देखिए, आपको पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये कॉन्टोर बैरियर्स ये रहे आपके, ठीक है, दीज आर कॉन्टोर बैरियर्स। यहाँ पे क्या होता है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स को यूज़ करते हैं अलोंग द कॉन्टोर्स, एंड ट्रेंचेस भी बना देते हैं जहाँ पे पानी को कलेक्ट किया जाता है। कैन यू सी ओवर हियर? उसके बाद आता है आपका रॉक डैम, आई एम सॉरी, रॉक डैम ओवर हियर, यू कैन सी रॉक डैम ओवर हियर, दिस इज़ अ रॉक डैम, ठीक है, दिस इज़ अ रॉक डैम ओवर हियर। सो रॉक डैम्स को भी हम पाइल्ड अप कर देते हैं, ठीक है, टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। ये रॉक डैम बनाया है, यहाँ पे आप देखिए, 1 मिनट, सॉरी, ये देखिए ये रॉक डैम बनाया है, इसको पानी को देखिए पीछे स्टोर करने के लिए हम ये बनाते हैं, ठीक है, पानी के फ्लो को रोकने के लिए, जिससे कि जो गलीज फॉर्म हो जाती हैं, ओके, एंड गलीज की वजह से सॉइल लॉस होता है। आपको गलीज भी, मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगी व्हेन आई एम गोइंग टू टेक माय ऑनलाइन क्लासेस। आप देखते हो गलीज में क्या होता है, जब पानी बरसता है तो मिट्टी में देखते हो ना, पतली पतली सी लाइन बन जाती है, गड्ढा सा हो जाता है, पतले पतली सी जो पानी के बहने के फ्लो में वो आ जाता है, इससे भी सॉइल इरोशंस होता है। ओके, सो इसको हम रॉक डैम बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग। यू कैन सी द टेरेस फार्मिंग ओवर हियर। टेरेस फार्मिंग इज दिस। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, आप देखते हो ये हिली एरियाज में आपको देखने को मिलेगी। दीज आर द ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और द टेरेसेस, सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं स्टीप स्लोप्स पे, जिसमें फ्लैट सरफेस में क्रॉप्स इन लोग उगाते हैं, हिली पीपल्स उगाते हैं। एंड इससे क्या होता है, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी बरसता है तो उससे क्या होता है, पानी बह के सॉइल इरोशन हो सकता है, तो वहाँ पे ये लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन नहीं हो पाता है। उसके बाद आ जाओ ये कॉन्टोर प्लॉइंग। यू कैन सी ये कॉन्टोर प्लॉइंग ओवर हियर। यहाँ पे देखिए ये प्लॉइंग पैरेलल टू कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप, हिल स्लोप्स के पैरेलल जो है प्लॉइंग की जाती है, जिससे कि ये नेचुरल बैरियर्स बन जाते हैं कि पानी बहने ना पाए। उसके बाद ये देखिए शेल्टर बेड्स, ये भी आपने देखा होगा शेल्टर बेड्स क्या होते हैं, स्पेशली ये कोस्टल एरिया से देखो लाइन से एक पेड़ लगा दिए जाते हैं। ड्राई रीजन्स में भी देखते हो आप, ये डेजर्ट एरियाज में, इसमें जो है रिवर्स जो होती हैं, ये जो रिवर्स की रोज होती हैं, ये विंड के मूवमेंट को चेक करती हैं और ये सॉइल के कवर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये शेल्टर बेड्स बनाई जाती हैं। Okay, so I have dealt with the two topics over here, the land and the soil over here. So read till page number 14 and be ready with your next topic, that is water, which I'm going to share in another video. That's much for today. So enjoy your day and be prepared for your further chapters also. Thank you.